Now is it visible? Yes. Now, madam, now tell me how you approach for this problem. Yesterday you was there, madam. Hello. Yes, sir. Yesterday you was there for the lecture, na? Yes, sir. So then tell me how you conclude from this IR data. What is the indication? IR data 1600 and 1500. Yes, that supports for the AR. 1600 is coming for CO stretching bond. Which one you are talking about? No, I'm just asking these two signals. 1600 and 1500. Difference of 100. Sir, carbon and heteroatom. No, man, no. Carbon heteroatom nahi hai wo. This is I'm asking this aromatic double bond. I'm asking about 1600 to 1500. A difference of in between these there is a difference of 100 and the signals range from 1600 and 1500. That is a condition for aromatic double bond. If you go for this particular thing, it will be indication that there is a mono substitution. You just follow the procedure which is given to you so that it becomes easy. You can follow any procedure issue, but this will give you a clear-cut idea ki what is to be written. Now, if you go for the mono substitution and then you go for this particular thing, then there is a for 2500, which is the indication of ether linkage. Now, let us consider that and assume particularly what are the possibilities for oxygen. Possibility for oxygen. What is the possibility of oxygen? First possibility will be C double bond O. Second possibility may be there is a OH. And the third possibility, we talk about the ether. Now there is no carbonyl frequency corresponding to 1700. So there is no possibility. OH 3300 is also not there. So ultimately it will be absent. So definitely it has to be present and which is supported by 1250. Now generally we have given it as 1100 centimeter inverse, but it may vary as there is the support for this. Is this clear? Now, if you see the particular thing, ultimately we can conclude that from this particular thing we can conclude that there may be a benzene and on this there is a one substrate. Why benzene? There is no nitrogen. So ultimately we talk about the benzene and 6 carbon. There are 7 carbons. So definitely we talk about the benzene. Now, whether this structure supports by the UV, yes, it indicates clearly that it is a combination of conjugated system. Now, why I'm saying conjugated system? Why not carbonyl? Because there is only conjugation is possible with respect to the given information. So you should be in a position in exam, try to interpret the information given as much as you can. Whenever anything is confusing, just name it. Now there is 18 millimeter and 12 millimeter. So ultimately there are 8 protons. So add the everything and divided by 3. So 1 proton corresponding to how much? 1 proton corresponding to 6. 6. So ultimately it's corresponding to 2 protons. This is for 3 proton and this is also 3 proton. Now we already confirmed that there are these two signals are more than 6.5. Aromatic. So ultimately this is also support for the aromatic thing. Okay. Now if you compare this particular thing, which is in the range of 3.8, so close to 3.4, which is the standard for OCH3. So definitely this signal has to be for OCH3. Is there any possibility of structure of anisole? There is a possibility of that one only. So we can draw the structure something like this one. So definitely that X has to be like this one, and we can write the structure as something like this. Is it okay? So this is confirmed. Now the question is,
the 3 and 5. One is given as a triplet. How you can interpret that triplet? So can you recognize these protons over here? So if I write this proton is A and this proton is also A, this proton is a B and this proton is B because they are identical, and this proton is C proton, right? Now can you tell me which proton is which one? This 7.2 triplet means what? Yes, meta means it will couple with this one and this also couples with this one with the ortho coupling. Means if you compare that this is a signal for original signal for HB, this HB will first combine with HA. Okay, so this will be a coupling for B combining with A. And later on what happens with the J value, something similar to, the J value is similar to some J value corresponding to 7.8. Now what happens? Again this individual signal will combine with C but with the same value. So there is an overlapping of signal and these are nothing but H, B, A, C. Okay, or we can say BC. And again, these J values are same as J is equal to 7.5 hertz. And ultimately what you observe is that instead of having the doublet of doublet, it appear to be triplet. And that's how we are getting the triplet over here. Now we can write as A signal is a combination of 6.5 delta and C will be also get merged over there 8.5 delta, but B signal is exclusively at 7.2 delta. This is a triplet with a J is equal to 7.5 hertz. That is corresponding to 2 protons. Now you see this is a 3 protons, this AR2 and 1 C, so it complete out to be that. ठीक है, हे ट्रिपलेट कसा आलं समजला ना सगळ्यांना? Okay, what about this one? What about this one? What about this one now? Benzyl 4. Yes. C2H. So now how you conclude what is the difference in the previous example and this example? What's the difference? We observe that Frequency. yes, this is corresponding to aromatic. If you go for the DU and everything is same. The DU comes out to be 4 and ultimately there is a possibility of aromatic. And aromatic whenever there you just go and hit the IR. There should be 2 signals in the range 1600 and 1500, and what's the peculiarity? The difference should be 100. So ultimately, yes, this is the concluding part that there is an aromatic is there. Okay. Then when you have the aromatic part, you have to look for the 3-digit numbers, and 3-digit number indicate that it must be mono substitution. Is it okay? Now if you apply the same logic, you can apply the same logic for possibility of oxygen. So And from in the 745, 695, how can we get information about oxygen? Which one? 745 IR value and 695. No, madam, it is not oxygen. I have never say oxygen, ma'am. Okay, sir. Okay, sir. I say this is corresponding. You was not there for the IR lecture. You was there for the IR. Yes, sir. उस टाइम मैंने बोला ना मैम कि ये जो है 1600 से 1500 के बीच में आपको 2 prominent peak दिखेंगे, then their difference will be 100 corresponding to aromatic. And this is corresponding to mono substitution. I never say about the oxygen. Okay, sir. Now I am writing the oxygen. Possibilities are, what are the possibilities? There may be a carbonyl. Second will be, there is a possibility of OH. And the third possibility will be of the ether. Okay. Now go one by one. Is there a carbonyl frequency? No. But there is a OH frequency is given. So no question about the ether. How? This is the particular thing. 3300 plus minus thing. So it is corresponding to OH. So I'm saying that 3500 centimeter inverse
is corresponding to the OH stretching frequency. Okay? Now you go for the IR data, NMR data. Now we just see about the IR, UV spectra. From this particular data, with the number of carbon atom, we can predict, just propose, there may be a carbonyl, that is benzene, and there is a mono substitution. If the mono substitution, definitely it will be 4 band or some bands between that one. So that is a supporting for that. Now there is a low epsilon value. What is a low epsilon value? If you see this in this case, there is no epsilon value mentioned, but it says that very low epsilon value indicate there is no conjugation per se, only conjugation due to aromatic ring. That is what is the conclusion is there. So don't say it's a conjugated, it's a non-conjugated system. Benzene itself shows this band. Remember that there is a difference between the conjugation. Now in this case we say this is the conjugation, but benzene wala conjugation is there, that we never count in those particular bands. Be careful about it. Because if you see, there are additional peaks, 720, 285, which were absent in this case. There are 4 bands, but they are low intensity. That's a problem. So you have to understand that point carefully and give the proper things over there. Now, if you compare this value, you combine all the millimeter values and divide it by 3. When you divide it by 3, what happens? The value comes out to be approximately the 15. So this comes for 5 proton. This is for 5 proton, or it comes out with 13 approximately. So this comes for 1 proton, this is 1 proton, and this will be for 2 protons on an average. Now, if you see this particular proton between the delta value in the range of more than 6.5, definitely support the presence of aromatic nuclei. That's the thing. Okay. Now, there is a one hydrogen. We already confirmed the one hydrogen over here, which is downfield. Okay. So this and this signal we have to confirm. Now, if you compare particularly this particular signal, we can conclude that it must be a hydrogen connected to OH, because we have to look for this particular thing. Na? वो hydrogen का peak तो आएगा, that will be OH. Why not considering this? Because these are 2 protons. Now you compare the aromatic with mono substituted. There will be a benzene nucleus attached to something else, and out of that I have already written the OH. So what is the left behind part? The residue will be here, will be CH2. Okay. Yes. So we have the OH. So definitely from this particular thing, which we have the molecular formula C7H8O, इसमें अभी residue क्या बच गया? CH2. Residue will be corresponding to the CH2. Now you connect all these possibilities, because this is a terminal. This should be a terminal part, and this has to be a terminal part. ये बीच में नहीं आएगा अभी. तो बीच में क्या आएगा? बीच में CH2 आएगा. So your structure will be something of this type. Now this, all the 5 protons will corresponding to 7.2 delta for 5 protons with a multiplet. It is written as singlet, but actually it will not come as singlet, it will come as a multiplet. You get a singlet if you have a, what you can call, you have the low resoluting NMR, like 60 megahertz or something like that, you will get singlet. Otherwise, you will get a multiplet. And other signals are there. So I hope you can compare now these two, same molecular formula, but slight difference in the IR gives a lot of things change over there. ठीक है? पुढचं पण तसंच आहे. You can do that one. Now, what is the peculiar thing? You have to observe this one. We have to observe this one, and these are the things. So based on this, it is an aromatic. Based on this, it's a mono substituted, and based on this, there is a OH. Okay. So based on these values, you can conclude very specifically over there. इथं माझा एक value राहिली. There is one particular value I have not written. That is 1700 centimeter mercury. Please put this value. This value is missing. This value is missing over there. Now, how I am come to know that this value is missing? Because it is written as broad.
it is written. एक minute. No, this is not a broad. One sec. This is not a broad. 7802. हे फॉर्म्युला चुकीचा लिहिला का नाही? दिस इज द करेक्ट. नाही सर, बरोबर आहे. पुढचा O2 वाला आहे ना, पुढचा O2 वाला. दिस इज करेक्ट ना. 1790 स्ट्रक्चर मध्ये त्या पुढचा आहे ना तो O2 वाला पुढचा आहे ना. हा ठीक आहे, O2 वाला पुढचा आहे. तिथं आहे ना नाही 1700. सर, स्लाइड नंबर 14 वाला एक सीट शेड होईल ना स्ट्रक्चर मध्ये, अगोदरच्या स्ट्रक्चर मध्ये आधीच्या काय? आधीच म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर CH2 असं येईल का? हे ना 14 मध्ये ना. हा 14 मध्ये. हा बरोबर आहे ना. 14 मध्ये तसंच येणार आहे. ओके सर. Okay, so we'll start solving this one. You find out the DU first. काय DU येणार सांगा? What will be the DU for this? DU will be 4. 4. So possibility of the aromatic nuclei. I'm saying the possibility. It may be 1+3 or 2+2. That may be possible. But I'm just looking for the AR. Very obvious thing. And whenever you have proposed this one, we have to look for the signals in the IR between 1600 and 1500. There should be a 2 signal in this particular regions, and their difference should be 100. So this is the case. So it is confirmed the aromatic nuclei. So aromatic is nuclear. Now, whenever you have an aromatic nuclei, what you have to look for? You have to look for the 2 signal in this particular region. मी मगाशी सांगितलं already we have talked. So this is a corresponding to mono substitution. And whenever there is a mono substitution, we can propose, because there are only 8 carbon, so we cannot consider anything else and no other heteroatom other than oxygen. Okay, so we just substitute as this is the mono substitutive thing. This is what is the case. Now, what is a substituent? Just see carefully. There is a 3500 centimeter inverse. Okay, and that too are broad. So ultimately it will be OH. OH group generally appears as a broad signal. Okay, so that is the case. Now whether it is support for this, yes, this is similar to previous signal. Magacha sarkache baga, the same signal. 2580 low epsilon value. This is also low epsilon because the UV will be corresponding only to the benzene, phenyl nuclei only, no more other than that. Now if you compare, you add all the mm values and divide it by 4. What is the indication? 4 mm corresponding to 1 proton. So this will be corresponding to 1 proton. This will be corresponding to 2 proton. This will be corresponding to 2 proton, and this will be corresponding to 5 proton. Now, whenever you have the OH, is this support the NMR data will support for that? So there should be a support, and this ultimately the signal more than 6.6 corresponding to aromatic nuclei. Is it okay? Now, if you see particularly this particular part, broad singlet. Broad singlet is what? Remember that in the NMR, broad signals are appeared for a atom, the acidic proton attached to either oxygen, nitrogen, or sulfur. Such hydrogens always gives a broad signal. Not necessarily. Sometimes you get a normal signal, but generally it is a broad signal. I'll show you at the end. I'll show you some spectra. That time you will come to know that how the broad signal will come. Okay, so definitely it will be corresponding to HO. This hydrogen will appear as a broad singlet. Now you go for this particular thing. Now, if you concentrate on this particular thing, their J values are same. What do you mean by J value same? They are coupled with one another. So they have connected with one another. Now, how many protons are there? Two protons. So ultimately, this proton has to be present on carbon. So I will write as this CH2. I will write as CH2 connected to CH2. Okay, and I will label them as A proton and the B proton. Now the question is whether the A proton will be, which one is the A and which will be B? Whether the A will be at 2.7 or 3.68. 3.6. Based on this, definitely one will be more downfield, will be attached to a electronegative atom. Now which is a atom? ये देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी है
और यहाँ पे एक कनेक्टिविटी है. नाउ there is a nuclear. So if you really go for the molecular formula, if you go with the molecular formula, C8H10O, क्या क्या मिला है हमें? पहला मिला है कि मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन है. कैसे कंफर्म किया बेंजीन ही है? Because there are 5 protons which are appeared as a multiplet in the NMR, which supported by IR. So this is the first one. Second nuclei, what we have got? We got that OH is there, okay, which is connected over there. So now these are the things. And the third thing which we have is the CH2 connected with the CH2. Now we already know that these two things should be at the terminal of the molecule because they are terminal part. तो ये तो बीच में होना चाहिए. तो इस दोनों को इस कनेक्टिविटी को ज्वाइन कर दो तो आपको स्ट्रक्चर जो मिलेगा, that structure will be CH2 and there is a OH. Now you can very easily confirm that which one is the which component. If I say this is a B and if I say this is a A as per the convention we have written over there. So ultimately what will happen? 2.7. Yes. So which one is the B? B will be this signal 2.6. and this will be a signal. So I can write here that I will write here as that this signal and these signals have a different values, and what those values are, the first value will be, I'll write this value. This value will be 2.7 delta with triplet and J is equal to 7 Hertz. Whereas this will be corresponding to 3.68 delta and with a triplet and J is equal to 7. Why triplet? Because for this the neighbor will have 2 protons. So this will be 2 protons but split into 3. This have 2 protons but split into 3. That is how the triplet will get, and that's how the compound you will get the things. And this is for 2.2 delta. Is it okay? What about this one? Now you see the du comes out to be, du is again 4. So we can guess directly there will be a TU5 maybe, sir. Yeah, whenever you have aromatic, what we look for? We look for at least 2 IR signals in the IR data which have a difference of 100. Now, and that will be 1600 and 1500 बीच वाला. तो ये दो कप पकड़ेंगे तो हमारे पास एरोमेटिक का सपोर्ट आ रहा है. पर एरोमेटिक का जब सपोर्ट आ रहा है, when you have aromatic support, see carefully, then you have one particular thing what is called as this one. Is this clear? Okay, तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये क्या है. This may be corresponding to what? बोलो 960 वाला है तो it may be C double bond C trans वाला है ना. पर this cannot be there. Why? If it is so, तो क्या होगा? आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन का पैटर्न हो सकता है. तो हमें पता नहीं अभी क्या है. Just go with that. Okay, so there possibility है. तो हमने लिखा है. अभी क्या है देखो, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि there is a possibility of 1700. DU किती आला है? 5 आला ना. DU will be 5 ना. Yes, sir. Yes. Plus 1 एक क्या हो सकता है? X double bond Y हो सकता है या दूसरा रिंग हो सकता है. So that's how I do it with that. Okay, that is one possibility. Other possibility तो बहुत सारी हो सकती है. 1+4 हो सकता है. ये जो हमने लिखा 1+4 है. Okay, other will be 3+2. Okay, so you can write other possibility, but first we go with aromatic and we support, and that's why we'll continue with this possibility. The next thing, 1700. 1700, we already know that 1700 will be corresponding to the carbonyl frequency. तो ये तो रिंग वाला जो पॉसिबिलिटी है ये तो हमने अभी रूल आउट कर दिया. अभी क्या दिख रहा है देखो, 3300 to 2700 will be definitely will be for OH. Okay, will be for OH. तो अभी जितना डेटा दिखा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते. क्या लिखा है देखो,
उसको आईआर से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम कंपेयर करेंगे कि एरोमेटिक है क्या। ये एरोमेटिक इज देयर बिकॉज ऑफ दिस वन। 6.5 से या 6.6 से ज्यादा है तो वो आईआर वो है। अब इसको कंपेयर करो पहले कि वही है क्या। वो सब एमएम को मल्टीप्लाई ऐड करो और 3 से डिवाइड कर दो। तो एक एमएम के लिए कितना आएगा, इट विल बी 6 mm, it will be 1 proton. So this will be for 5 protons and this will be for 2 protons. Now अभी एक ही प्रोटॉन है, हमने ऑलरेडी देखा है, we already know that this particular thing will be for either this OH or enol. ये हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया है, इफ यू रिमेंबर हमारे डेटा में लिखा हुआ है। और ये इसको कंफर्म है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम एक ही कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन हो गया, इज क्लियर फॉर हाउ आई कंक्लूड दिस वन, हाउ आई कंक्लूड दिस वन, इज इट ओके फॉर एवरीबॉडी। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O2। इसको मैंने किस किस में कंक्लूड किया है, देखो इसको मैंने इसमें कंक्लूड किया है, दैट इज फॉर दिस वन। ओके, अभी मुझे कंफ्यूजन है कि इसमें क्या है, तो मैं तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रख देता हूं। वो डाई है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये C दिखा रहा है। इज इट क्लियर। दूसरा क्या दिखा है मुझे, दूसरा दिखा है मुझे कंफर्मली C OH। अभी मुझे कंफ्यूजन है इसके बारे में। तो इसको कितने प्रोटॉन से, 2, यहां पे तो 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, पर ये दोनों प्रोटॉन सेम ही दिखा रहा है। इसका मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन। क्योंकि मुझे आप काउंट करोगे अभी यदि आप सब काउंट कर लोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सी देयर आर 6 कार्बन एंड दिस इज 7, तो एक ही कार्बन बचा है। तो ये 2 कार्बन वाला पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा, इसके बजाय मैं कंक्लूड करूंगा कि ये जो है ये इसका है ही नहीं है। इट हैज कम बिकॉज इट्स ओवरटोन बैंड, इट इज कॉल्ड ओवरटोन बैंड। जब आप आईआर देखोगे तो उसमें आएगा आपको। तो इसलिए मैंने बोला था कि कई बार आपको डेटा कंफ्यूजिंग लगता है तो उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं इमीडिएटली, जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड देन अटेम्प्ट इट। सो रेसिड्यू विल बी, रेसिड्यू इज, व्हाट इज द रेसिड्यू, रेसिड्यू इज CH2। नाउ हमें पता है कि ये जो 2 चीजें हमें मिली है, these are terminating, these are terminal, there has to be terminal part। These are terminal and उसी के साथ ये कनेक्ट करना है। तो आपके पास कोई भी दूसरा चारा नहीं है विदाउट पुटिंग द कंपाउंड एज दिस वन। What is this compound? What is the name of this compound? What is the name of this compound? Phenylacetic acid. Yes. What is the use of this one, phenylacetic acid? Is it useful? Any application of this one, phenylacetic acid? Remember that phenylacetic acid derivatives are growth regulators in agriculture. So lot many people are working on this one. This you can synthesize this is very easily. Okay, because if you have the, I will write that one. Generally people will take this one, okay, and you hydrolyze it and you will get this one. Okay, so this is how you can generate it. There are variety of other ways, but remember this is a growth regulator thing over there. Is it okay? How I conclude, how I remove this part, this part is very clear. तो मुझे दिख रहा है why, क्योंकि 960 will be corresponding to trans. I know that from some information data, selective data. तो वो हो सकता है, पता नहीं मुझे, मैंने लिखा। बाद में मैंने कंक्लूड किया कि 2 हाइड्रोजन तो दिख रहे हैं, पर वो दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे है, ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन पे है। तो मुझे 2 सिग्नल दिखने चाहिए थे, वो नहीं दिख रहे। तो जे वैल्यू अलग अलग आएगा, तो वो नहीं दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ NMR डेटा, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर देयर। इज इट ओके? Yes, sir. यस। अभी बोलो इसका क्या आएगा। व्हाट अबाउट दिस वन? ये आप कर सकोगे मेरे ख्याल से। इज इट ओके? येस सर. चलो कुणी केलंय का हे केलंय का, सोडवलंय का? अरे मी सगळं सर मी बनवलंय, हा? मी बनवलंय सर, मी बनवलंय. DU किती आहे सांगा? 7 आहे सर, 7. 7.
So possibility will be एरोमेटिक रिंग, aromatic ring plus क्या हो सकता है कार्बन बताओ? कार्बन कार्बन नहीं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. नाही तसं नाही सांगायचं मला अभिजित. यू डोंट टेल मी Sir, दॅट वे. 4+3 हो सकता है. ओके ओके 4+3. 4+3 हो सकता है, बराबर है. That 3 हाँ. may be written as 2+1 हाँ या 3 भी लिख सकते हो आप, है ना? तो just Yes, sir. let's see how this 3 will come over there. What is the possibility of this 3? Let us have a look on this one. Okay, ये 3 क्या है वो जरा फाइंड आउट करते हैं. चलो पहले करते हैं एरोमेटिक है क्या. सो हाउ यू लुक फॉर द एरोमेटिक. आईआर देखोगे जहां पे आपको 1600 और 1500 के बीच में कोई तो सिग्नल दिखना चाहिए, 2 सिग्नल्स, और उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 100. यस, सो दैट सपोर्ट्स फॉर द एरोमेटिक. वेरी गुड. अभी आगे जाके क्या देखोगे आप बोलो. आगे जाके क्या देखोगे. आगे जाके आपको दिखेगा 750 और ये दिखा रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड. ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है. अब मैंने जो आईआर की रेंज दी है उसको जरा कंपेयर करो. अभी ये क्या दिखा रहा है. ये शायद मुझे दिखा रहा है दिस इज शोइंग मी समथिंग करस्पॉन्डिंग टू, मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज समथिंग करस्पॉन्डिंग टू दिस वन. नो आइडिया क्या हो सकता है मुझे पता नहीं, मैंने जस्ट लिखा है बेस्ड ऑन द आईआर. इज इट ओके. ओके, तो ये समझ में आ गया. तो आईआर को सब. अभी थर्ड वाला देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है. ये देखो, ये जो दिख रहा है दिस इज करस्पॉन्डिंग टू, सो आई एम राइटिंग 2500 सेंटीमीटर इनवर्स वाला जो है दैट विल बी डेफिनेटली फॉर, वो किसके लिए हो सकता है बताइए. दैट विल बी फॉर आइदर OH, दैट मे बी फॉर आइदर NH, और दैट मे बी फॉर टर्मिनल अल्काइन. इज इट ओके. Yes. इसमें मैं NH वाला रूल आउट करूंगा क्यों, नाइट्रोजन है ही नहीं है. अभी OH हो सकता है, मुझे पता नहीं है, या अल्काइन भी हो सकता है. दैट विल बी पॉसिबिलिटी, आई डोंट नो. अभी OH है कि नहीं मुझे कंफर्म बता सकता हूं मैं कैसे. देखो यहाँ पे मुझे D2 एक्सचेंजेबल लिखा है, और मैंने ऑलरेडी बोला था D2 एक्सचेंजेबल कहां पे आएगा. whenever you have a hydrogen present on nitrogen, oxygen or sulfur connected to hydrogen, ये जो है that will be corresponding to D2 exchangeable. तो ये OH भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो. ओके, ये भी रिप्लेसेबल होता है कभी कभी, पर इट डिपेंड्स व्हाट इज द सिचुएशन यू हैव. ओके, कितना एसिडिक है वो है, सराउंडिंग क्या है इसके हिसाब से. तो लेट्स गो फॉर द अनदर वन. व्हाट इज अनदर वन. नाउ इफ यू कंसीडर दिस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी, C ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल अल्काइन, देयर हैज टू बी 2200 सेंटीमीटर इनवर्स which is corresponding to C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N. अभी ये C ट्रिपल बॉन्ड N वाला तो पॉसिबिलिटी मैंने रूल्ड आउट किया. क्यों. अभी ये तीनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है. OH भी है, टर्मिनल भी है, ये भी है. इज इट ओके. तो मुझे पता है कि टर्मिनल है, इसका मतलब ये जो मैंने कुछ भी लिखा है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, 1620 वाला सिग्नल होना चाहिए. 1620, एंड उसके साथ आपको एक पर्टिकुलर सिग्नल होना चाहिए, वो नहीं है. हमने देखा है वो सब डबल बॉन्ड वाला सिग्नल वाला क्या सिचुएशन है. तो आईआर का वैल्यू थोड़ा कंपेयर करोगे ना तो पता चल जाएगा. अभी देखते हैं वेदर इट सपोर्ट्स आवर वैल्यू और नॉट. हमने एरोमेटिक देखा था, तो देखिए एरोमेटिक के लिए यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिख रहा है सिग्नल, ये वाला सिग्नल. इज इट ओके. सो दिस इज फॉर एरोमेटिक सिग्नल. इज इट ओके. नाउ हम पहले उसको कंपेयर कर लेते हैं कितना होता है. 18 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, सबका समेशन करो और 3 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा. एक प्रोटॉन का वैल्यू कितना आएगा. फॉर 1 प्रोटॉन विल बी करस्पॉन्डिंग टू, मैंने यहाँ पे आप 6 ले लीजिए तो हो जाएगा फिर. सो दैट बिकम्स 8 लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो उससे ज्यादा बन जाएगा तो आप कम कर लो उसको. ओके, सो दैट विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1H. दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी. दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू 2H, एंड दिस विल बी करस्पॉन्डिंग टू 3H. अभी आप देखो कि 3H और 2H है, एरोमेटिक है, तो डेफिनेटली ये जो दोनों सिग्नल्स आपके पास आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, these will be corresponding to aromatic signals. Aromatic signals. और ये किसके वजह से आ रहा है. This will be corresponding to OH वाला सिग्नल. Is it okay? तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे पास अभी क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इतना इस इंफॉर्मेशन लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जितना लिखा है उतना समझ में आया सभी को. आई होप सो. इज दिस क्लियर. एनी डाउट. पॉसिबिलिटीज लिखा मैंने, क्या क्या हो सकता है, बस, बाकी कुछ नहीं लिखा. अभी इसमें मुझे क्या क्या दिखा. मुझे दिखा कि AR मोनो सब्स्टिट्यूट हो सकता है.
डाई सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि ये डाई सब्स्टिट्यूट होने का चांसेस ही नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि आपको आयर का डेटा बराबर से पता है तो आप कर सकते हो ये चीज, नहीं तो नहीं करो पाओगे आप। ओके, अभी आप जरा देखो, एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, वो ये है, इसके वजह से मुझे पता है कि वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये दो, इसका जो पॉसिबिलिटी है ये 2+1 वाला ही होना चाहिए, ना कि अदर। तो ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या बन गया? सो इट विल बी एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई प्लस क्या होना चाहिए? रिंग हो सकती है, पर रिंग का पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है। अदर पार्ट विल बी एक्स डबल बॉन्ड वाई। अभी एक्स डबल बॉन्ड वाई क्या हो सकता है? ये हो सकता है सी डबल बॉन्ड ओ विच इज रिटर्न ओवर हियर। ठीक है, हे कळलं का नाही कळलं सांगा? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप देखो क्या क्या है। हाँ? अभी देखो, अभी मैं दिख रहा हूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ OH, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C। C ट्रिपल बॉन्ड N वाला तो मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि इसका सिग्नल ही नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक सिंगल प्रोटॉन दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो OH वाला एक्सचेंजेबल है। ये एक्सचेंजेबल इतना नहीं इजी होगा, अदरवाइज OH कहां पे रखोगे आप? OH का सिग्नल नहीं दिखेगा, दैट्स व्हाई आई रूल्ड आउट। इज दिस क्लियर? तो आप क्या देखोगे कि इन दोनों को मिला के मैं एक कंपोनेंट बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? C डबल बॉन्ड O OH वाला, है ना? तो ये क्या बनेगा? आपका, तो ये जो कुछ हमने यहाँ पे लिखा है, दिस एंटायर थिंग इज टर्मिनल वाला और ये बीच वाला होगा। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। अभी आपको यहाँ पे एक अलग चीज दिखेगी, यहाँ पे आप अलग चीज दिखेगी। क्या दिखो? ये जो 3 प्रोटॉन है, मैं दिखा रहा हूं, देखो ये और ये A प्रोटॉन है, ये A प्रोटॉन है, और ये C प्रोटॉन है। ये C प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे A और C के सिग्नल है, दिख रहे 3 के लिए। पर यहाँ पे जो B सिग्नल है, B सिग्नल, इट इज नॉट गिविंग यू सेम J वैल्यू, इट इज गिविंग सम अदर वैल्यू। Okay, so be careful about it. This will be corresponding to 7.7 delta. ये हो सकता है depending on the scenario, वो हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। So it will, one gives a ortho and other is the 8 hertz. That's how you can do the things and you will get the idea over there. Is it okay? ये समझ में आया क्या आपको? Yes. ठीक है, सपोज आप इसको ड्रॉ करना चाहो, सपोज आप J वैल्यू को ड्रॉ करना चाहो, तो मैं लिख रहा हूँ J वैल्यू, मैं J वैल्यू की बात स्प्लिटिंग बता रहा हूँ आपको। ये लिख सकते हो आप, ये होगा आपका HB, दैट विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू 8 हर्ट्ज, और बाद में वो 2 हर्ट्ज में कन्वर्ट होगा। इसलिए आपको वो डबलेट ऑफ डबलेट दिखेगा, ये डबलेट ऑफ डबलेट दिखेगा। इज इट ओके? ये बोलो अभी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल? हे जरा सगळ्यांनी सोडवा बरं, ज्यांनी सोडवलं नाही त्यांनी सोडवा, मला सांगा। कल्याणी मॅडम सोडवलेत का हो? एट आहे सर, आणि 4 हा? नाही 4 नाही येणार सर, 4 नाही येणार, सल्फर आहे त्यामध्ये। 4 करा ना ते, 9 दुने 18 अधिक 2 वजा 12 आणि बाकी काही नाही, डिवायडेड बाय 2 किती होतं? हा, मोलिक्युलर फॉर्म्युल्यानुसार तर 4DU येत आहेत. तेच ना 4 म्हणतायत। यानी 4 येत आहेत ना? हा, ऍक्च्युली इथं हायड्रोजन किती आहेत बघा, जर हायड्रोजन सांगा किती येतात? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये गडबड झाली आता।
6 7 8 9 बरोबर आणि ऑक्सिजन हायड्रोजन बरोबर आहेत ना मग डीयू का फरक पडतोय डीयू फक्त सर बरोबर येत नाहीये. बा अरे नाही सल्फर आहे ना प्रश्न अभिजित आपला सल्फर पण काउंट करायला लागणार आहे ना आपण तो काढलाय ना आता ठीक आहे 4 येतोय ना ठीक आहे आता 4 लिहा तुम्ही बघूयात आपण काय करायचं बघूयात आपण ओके सो ते हा आता हा थोडा जरा प्रॉब्लेमिस्टिक सिच्युएशन आहे ठीक आहे आता राहू द्या तो डीयूचा काही प्रॉब्लेम नाही सोडा तुम्ही आता आधी हे सोडवा हे किती येणार सांगा हे किती येणार 5चा 1 होईल का 5चा 1 होईल का येस सर. 5चा 1 होते सगळ्याची बेरीज यू हॅव टू सम एव्हरीथिंग ऑल mm values and divided by how many signals 1 2 3 4 5 so you will one proton correspond to how many ppm and mm and you will get this value now just do it क्या देखोगे आप पहले बोलो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको yes is there any aromatic character yes how ये देखो तो ये aromatic दिख रहा है इसकी वजह से मैंने aromatic भी लिखा है ना अभी एरोमेटिक लिख दिया अभी बाकी क्या होगा एरोमेटिक होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी दिखना चाहिए था ओके मोनो है डा है वो पता नहीं चल रहा है कुछ ओके सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अभी आप क्या करोगे अभी इससे तो अभी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है ओके नंबर 1 नंबर 2 क्या करोगे अभी आप नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल लुक फॉर वी गो फॉर दिस सिग्नल्स क्या दिखेगा आपको दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल दे आर करस्पॉन्डिंग टू एरोमेटिक पर यहाँ पे आपको दिखेगा कि जे वैल्यू जो है ये है तो इसका मतलब क्या है व्हाट इज दिस वन दिस इज एरोमेटिक कंपोनेंट विथ आर्थो सब्स्टिट्यूशन क्योंकि जे वैल्यू 8 है वो आपको आपके पास टेबल लिखा हुआ है वो टेबल में लिखी हुई है मैंने वैल्यू ओके सो अल्टीमेटली आई कैन प्रपोज दैट एरोमेटिक मस्ट बी 6 वाला ओके दिस इज द केस और उसमें आपके वो डाई सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं आई एम जस्ट प्रपोजिंग आई एम नॉट सेइंग आई एम जस्ट प्रपोजिंग बेस्ड ऑन दिस ये ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन दिस ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर अभी क्या दिखेगा बाद में आपको दिखेगा कि देयर इज अनदर थिंग जैसे 8 देयर आर सिग्नल्स विथ जे वैल्यू 8 इज आई कंपेयर सिमिलरली 7 and 7 may be a couple what is the situation we observe that this signal is for 3 protons yes this signal is for 3 protons so the signal is for 3 protons but its neighbor has a triplet है so definitely its neighbor will be CH2 is it okay now again this signal is for 2 protons this signal is for 2 protons and the quartet so ultimately its neighbor will be CH3 or both have the same J value so they are representation of a same thing that is nothing but CH2 CH3 they are same CH2 CH3 is this clear now there is only one signal that is for the CH3 and that is singlet so definitely this has to be CH3 okay this must be CH3 now let us count with the given data C9 H12 SSO3 okay and what are the possibilities we have a one possibility corresponding to there is a benzene nuclear which is a there is a second thing we have there are two things one is CH2 CH3 is there and other is the CH3 is there right now what you conclude as these are definitely a terminal ये टर्मिनल पे ही होगे इसके बजाय कुछ नहीं हो सकता नंबर 1 दूसरी बात ये बेंजीन विद डाई सब्स्टिट्यूट है तो रेसिड्यू क्या था व्हाट इज द रेसिड्यू SO रेसिड्यू क्या बचा इसको सबको सब्ट्रैक्ट कर दो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बच गया आपके पास SO3 SO3 will be there is this clear अभी आप पूछोगे सर ये जो ये CH3 है ये 2.5 को है नॉर्मल रेंज क्या है नॉर्मल रेंज इज 0.9 अप्रोक्सीमेटली 0.9 हाँ
पर ये 2.5 है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को अटैच नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू OCH3 का क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड OCH3? 3.4 डेल्टा, है ना? और आप ये भी देखो, ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात ये भी देखो, कि मैंने एक चीज आपको लिख के दी थी कि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, कि जब ये CH डबल बॉन्ड CH और इसको CH होगा, तो ये कार्बन के लिए मैंने एक रेंज लिख के दी थी, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 2.2 डेल्टा, इफ यू रिमेंबर। But he shows double. मैं दिखा रहा हूं। ओके, ये देखो, ये विनाइलिक का लिखा था मैंने, ये वाला, इसके आगे चाहेगा ये वाला, सो 1.5 मोर देन 1.6 होगा ये, पर ये 2.2 से 3.4 से या 2.2 के नजदीक भी हो सकता है, सो 1.6 से ज्यादा है ये, सो डेफिनेटली इट इज समथिंग करस्पॉन्डिंग टू दिस, वन थिंग। और दूसरी चीज मैंने एरोमेटिक के लिए भी बोली थी कि दिस वाज द बिलो ये होना चाहिए, तो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड कि इसका पॉसिबिलिटी जो है, ओके, ये हो सकता है। सो दिस वैल्यूज वी ऑलरेडी नो इज मोर देन 1.6 डेल्टा, ये हमने लिखा था, ये CH नहीं लिख रहा हूं मैं, विनाइलिक लिख रहा हूं। ओके, तो ये तो कंक्लूड कर लिया हमने, चलो वो बाकी नहीं कंक्लूड करोगे तो ये भी कंक्लूड कर लो कि वो CH3 डेफिनेटली नहीं है, तो ये वो CH3 नहीं है, तो ये ऑक्सीजन इधर काउंट कर लिया मैंने, ये समझ में आ गया क्या? और ये भी नॉर्मल रेंज में है, तो इसके वजह से वो CH3 है। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या लिखोगे बोलो? एक तो मुझे ये लिखना पड़ेगा Sir, there is one more. यहाँ पे मैं लिखूंगा CH2 CH3, ये टर्मिनल वे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे भी मैं CH3 लिखूंगा। ये टर्मिनल पे जाएगा, तो बीच में ये होगा S डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O हो सकता है, या देखो, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो SO3 है ये हो सकता है, या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ। I hope everybody why I eliminated the OCH3 is clear for everybody. ये समझ में आया कि आपको सभी को? Is it okay? Sir, ती वरची पॉसिबिलिटी वाटते. CS3 च्या मध्ये पाहिजे इकडे. Now listen, don't be in hurry. मैं पूछ रहा हूँ आपको Okay. कि ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती फिर? या आप इसको उल्टा करो जैसा मैंने ये किया। सर, ओके, मिथॉक्सिन असणार आहे सर, कारण CH3 चा सिग्नल नाही तेवढा 3.2. वो CH3 हो नहीं सकता, तो मैं इसको ये ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, क्या नहीं? सर 2.5 डेल्टा, वहां पर वो जो CH3 है वो कितना तो यार दिस विल बी कंप्लीटली रूल्ड आउट, क्योंकि इसको तो 1.3 है, वो तो इतने नीचे जाएगा नहीं, वो CH3 है, तो नॉर्मल ये है, तो इसमें प्लस 3 करके 0.3 करके ही आप इसको ये लिख सकते हो ना, है कि नहीं? तो 3.7 होना चाहिए, 3.7 नहीं सर, ये कळलं का? हाउ आई कंक्लूड दिस? एवरीबडी क्लियर? सर ऐका ना, हॅलो सर, तो तिसरं स्ट्रक्चर तुम्ही ड्रॉप केलंय ना 3 नंबरला इकडं खाली, हा, तर तो हा तर त्यातला ऑक्सिजन जो आहे ना तो CH2 च्या शेजारी का नसणार आहे? वेर सल्फरच्या शेजारचा सल्फरच्या शेजारचा ऑक्सिजन एरोमॅटिक रिंग सल्फर, This why you not want to it say is this? near to CH2? just one minute. लिहितो मी, कळालं मला तुला काय म्हणायचं होतं, मी लिहितो ते पण स्ट्रक्चर लिहिणारे पण जागा नव्हती. ओके, वेट, मी लिहिलं होतं त्या आधी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई गॉट योर कंसर्न। मैंने लिखा था, पर मैंने वो बोला उसको कि ये क्यों नहीं हो सकता, इसलिए मैंने वो रब कर दिया, मैंने पहले लिखा ही था। नहीं, हेलो सर, नो सर, CH2 च्या शेजारी ऑक्सिजन आणि सल्फरला फक्त CH.
बेन्झिन रिंगला CH2 CH3 CH2O आणि सल्फरला नाही. CH3. CH3 इथं CH3 नाही मिथॉक्सीच्या जागी डायरेक्ट नाही. सल्फरला CH. बोल मग. सल्फरला मिथिल ग्रुप घ्या हा आणि तो राहिलेला ऑक्सिजन जो आहे ना तो CH2 च्या शेजारी घ्या. हो सर बरोबर. हे काय इथे लिहिलं ना मग ते स्ट्रक्चर बाबा, हे लिहिलं ना बघ. नाही हे वेगळं आहे ना. अच्छा, हे वेगळं आहे ना, हे वेगळं सी आहे. मध्ये बदल करा. I got it. अजून एक I got it. Just give me 1 minute time. Just give me 1 minute time. I got all the possibilities. Just. I'll write all possibilities. Don't worry. रे Just 1 minute. 1 minute. एक मिनिट थांबा फक्त. मी सगळ्या पॉसिबिलिटी लिहितो. जस्ट डोंट वरी. I'll write all possibilities. कोण गेले आता? कर मला तरी गाडी घ्यायची नाही कुठे अभिजित लॉग इन म्हणजे बंद कर बळा. शेवटचे तर ऑक्सिजन जास्त झाले. हा, चालेल. सर अभिजित ते सांगत होता तुम्ही जे हे लिहिलंय ना तेच लिहितोय मी तेच लिहितोय. आज कळालं सर मला लक्षात आलं मी काय म्हणतो तो अभिजित. हो इथं म्हणतोय बरोबर. हा आणि इकडे फक्त SO2 CH3. ऍक्च्युअली अग्री. इथे मगाशी स्ट्रक्चर लिहायला जागा नव्हती त्यामुळे मी असं लिहिलं. इज इट ओके अभिजित नाव? हो येस सर. नाही हे जर पॉसिबल आहे, हे जर तुम्ही लिहिताय तर मग हे का नाही लिहायचं? हे पण लिहा ना. Write this one. And we already know that OCH3 standard is 4 delta. बरोबर आहे ना? Is it okay? Okay. So because of this, we ruled out this possibility for 3.4 है ही नहीं इधर. Is it okay? Yes, sir. Yes. What about this one? येस सर. ये 3.4 है, ये 3.4 है, तो वो CH2 है, तो इसका कितना होगा? वो CH3 का कितना होगा? वो CH2 का कितना होगा? इसमें 0.3 ऐड करना है आपको सिर्फ. 0.3 ऐड करोगे तो कितना है? 3.7 आना चाहिए है ना? हाँ. पर है क्या 3.7? 3.7 भी नहीं है. 3.7 भी नहीं है क्योंकि वो 4 वाला जो है इधर लिखा है मैंने. बॅकग्राऊंडला कोणाचं तरी काळे सर. काळे सर म्यूट हुआ. now can you tell me which is the significant figure you will to look for? ध्यान में रखो एक ही Sir. आपको हाँ हे बघा तुम्ही ते CH2 ला ऑक्सिजन जर जोडला तर त्याला CH3 का जोडला जातो? तो पहिला सिग्नल आहे ना तो ट्रिपलेट आणि तिसरा सिग्नल क्वार्टेट आणि त्यांची फ्रिक्वेन्सी पण मॅच होती म्हणजे इथॉक्सी ग्रुप असण्याची जास्त शक्यता आहे.
I like that. Coming to that, that's what I'm saying. You write all possible structure and then ruled out the thing. That's what I'm saying. And which is the prominent signal which will distinguish that particular thing? This one. That CH2 has to be a 4, which is corresponding to this one. And second thing is this 2.5. If you take see the toluene, then this is a 2.3. This is a 2.5. So ultimately it has to be CH3, this one. Or you can write it the structure as this one. So your probable structure will be this one. Is it okay? हे बाकी स्ट्रक्चर का मी रूल आउट केले, कळलं का नाही कळलं सांगा. सर एक प्रश्न आहे, जर मिथिल ग्रुप जर सल्फरला जॉईन असेल तर काय व्हॅल्यू? याच्यापेक्षा अजून वेगळं स्ट्रक्चर आहे का तुमचं? नाही, माझं एक जनरल विचारायचं होतं, जर मिथिल ग्रुप सल्फरला जोडला असेल तर काय डेल्टा व्हॅल्यू येईल? ऑक्सिजन पेक्षा कमीच येईल ना? ऑक्सिजन पेक्षा कमी येईल सर. पण प्लस प्लीज रिमेंबर सर प्लीज अंडरस्टँड दिस सल्फर is sp3 hybridized. Correct. Okay. To that of it is delta minus. It is a delta minus, and this is a delta minus, no doubt. So it will be plus 3 delta. sp3 with 3 delta. So there is a difference. There is a difference between the delta value of this CH3 and there is a delta value of this CH3. Okay. No doubt both are same. sp3 hybridized. But there is a difference. Okay. So I'll give you that value also. Just let me give me. You use a Pavia book, okay? आणि त्या Pavia मध्ये ते दिलेलं आहे. ती व्हॅल्यू कुठली आहे फक्त मला एकदा चेक करावी लागेल. But I just want to check it once. मी दाखवतो तुम्हाला कुठली व्हॅल्यू आहे ते सांगतो. ओके. तुमच्याकडे Pavia आहे का? नाही सर. मी तुम्हाला आता ग्रुपवरती अभिजितला Pavia पाठवतो. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक रेफरन्स लिहितो, तुम्ही तो रेफरन्स जरा बघा. ओके, मी लिहितो रेफरन्स. ओके, आयआर व्हॅल्यू, आयआर साठी पेज नंबर 89 वरती त्यांनी तो सिग्नल दिलाय बघा. ते दिलाय कशाचा स्पेक्ट्रा दिला सांगतो. ओके, त्यांनी याचा स्पेक्ट्रा दिलाय आयआर व्हॅल्यू. आय एम सॉरी, मी हे कधी लिहित नाही 0. सो दिस इज नॉट ऑलवेज यू राईट इट लाईक दिस. यू राईट इट. हॅलो सर. हा बोला. ते प्रशांत सर आहेत बॅकग्राऊंडला, त्यांना फक्त इन करून घेता का तेवढं प्लीज? प्रशांत सर. हा, प्रशांत सुधार आहेत मला वाटतं. सर पावियामध्ये सँडविच कंपाऊंड्स आहेत का फेरोसिन लाईक? हव्यामध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जास्त आहेत मॅडम. बेसिक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मॅडम ते याचा आयआर व्हॅल्यू दिले बघा. फेरोसिन टाइपचे जर कंपाऊंड असतील तर त्यांचं कसं हे करायचं? एखादं एक्झाम मॅडम ते रिसर्च पेपर्स बघायला लागतील. तुम्हाला रिसर्च पेपर्स बघायला लागतील. मग गरुड सरांकडे एक पुस्तक आहे, त्या पुस्तकामध्ये आहे का जरा चेक करावं लागेल. गरुड सरांना एकदा विचारा तुम्ही. सर ते पुस्तकाची सॉफ्ट कॉपी ओके माझ्याकडे आहे, ते मी पाठवतो. कुठल्या स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशनचे डेटाचं, फक्त डेटाचं पुस्तक आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मॉलिक्युल्स आणि डेटा दिलेला आहे. अभिजितकडे आहे तेवढं बघा. ओके, ग्रुप मध्ये टाकतो सर. ओके. हा आयआर बघा, मी पुस्तक पाठवतो. माझ्याकडे थर्ड एडिशन जी आहे ती थर्ड एडिशनचा मध्ये पुस्तक आहे माझ्याकडे पावियाचं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे मिळेल. यू विल गेट दॅट थिंग. आय हॅव द पाविया एडिशन 3. आय विल सेंड दॅट कॉपी विथ अभिजित. Okay, so you just check the IR data of this one. Now from the data you conclude that this is a compound. याच्यात कोणाला anybody has a doubt about this one? मॅडम काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? मॅडम you have any doubt? No sir, got it. Is it okay? Okay. Okay. I hope we can able to just go with the this particular spectra first, and then I'll want to show you something else. Okay, you can able to do this one, no problem. Let us go
and do some exercises on the hands-on of the. You can solve these exercises. These are very simple exercises. I don't want to go into this one. If you want, I can show it. Now I'll come for this particular point. This is a very important point. What is that? The point is, or should we continue this point in the next lecture, and we'll first complete this theoretical problems first? Should we do that one? Okay, tell me now this one. Have you done this exercise? Have you done this exercise? We'll complete this exercise as well. Have you done this exercise? डन बट नॉट शुअर सर. Huh? सोडवलंय पण शुअर नाहीये. DU Sangha. What is the DU? Madam, DU is what? How much do you have? 18. 4. 4. Oh, बोलो मैम अभी. हम जरा बोलो मैम. There is a 4. Okay. So possibility of aromatic will be there. Now, whether there is a support for the aromatic character in this compound or not. Just see carefully. What I've told you, you have to look for the IR data, and you should have the minimum difference of 100. So it shows supports for the AIR. Okay. If you still have a doubt, just check whether there is an aromatic signal given in the NMR or not, for simplicity. Now, before that, you also go for the addition of all these MM value and divided by 3 and see this MM value corresponding to how many protons. You observe that this will be for 5 protons, this will be for 1 proton, and this will be for 6 protons. Now, if every time I'm taking this is as a multiplier or something, this is called as a first order NMR. I have not taken the second order or third order NMRs, where you will get an integral multiplicity of this is more complex. The spectra which is discussed over here has scan at approximately 300 megahertz NMR. Is it okay? This is scan at 300, and that's why many times you will get a multiplet over there. No splitting, clear-cut splitting. Okay, you have a merging of signals, and that is what the first order NMR I have discussing in the class only. No further thing. Now, next thing. What is the next thing? So aromatic to confirm ho gaya. Now aromatic is confirmed. What is the next thing? This is support with this one. So it is epsilon value less than 100, 10,000. Okay. So this is less than this value. Then it is low. It is called as low. Okay. So low has means no much information. So this value 250 नैनोमीटर के नजदीक पे होगा तो एरोमेटिक को सपोर्ट करेगा. इतना ही आप इंफॉर्मेशन कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं. So it is concluded it is a conjugated system. Is it okay? Now you come for this one. What is the indication? The indication is that there are 6 protons. There are 6 protons. 6 protons. How you can write the 6 protons? How you write the 6 protons? 2-methyl. Pattern as a combination of 2-methyl. CH3. And adjacent to this, showing the doublet, ultimately it will be what? Connected to the CH. Is it okay? So these are the protons. Now you come for this particular proton. Okay, I'll just remove this part and write it upstairs so that it becomes easy for you. Now what about the bottom one? It has a CH. Okay, it has a CH and it is a septate. Septate means 7. So adjacent will be 6. So neighbor will be 6. How will we have a neighbor will be 6? Neighbor will be 6 as something like this one. This is one possibility. Or other possibility may be CH connected to CH2 connected to CH2. Is it possible? No, it is not possible because 6 can be written only in this format. Is it okay? Why I am writing this format? Because upper part has the J value same. So they are coupled. Okay. Yes. So finally from these 2 protons, I can conclude that there is a something called as this one. What is this group is called as? What is the name of this group? Isopropyl. Okay. Now you just conclude over there. What are the molecular formula? C9H12
S. And what are the things we have got? This is a monosubstituted. So ultimately it will be a benzene and monosubstituted. So phenyl one. And other part is CH, CH3 and CH3. And both are, all these are terminal ones. So you have to put it as a terminal. All right. And what is the residue left behind? It's sulfur in between. Residue will be S. So probable structure will be very simple. It's a thioether. So you always see to that, you write all the things, try to identify the terminal part, and then you write the middle part with all possibilities so that the things become easy to manipulate. So after all, interpreting a data is a manipulation of the data, nothing more than that. Is it okay? Yes, sir. So what I'll do, I'll just solve these two exercises. Okay, these three exercises will solve, and next time I have some data with respect to these values. Okay, so I'll show you hands-on actually with the spectra, how to go with the spectra. Spectra कैसे दिखेगा, and how to recognize, how to get the data information from the spectra. तो J value कैसे निकालोगे, क्या निकालोगे, सब मैं preliminary बताऊंगा जब मस्के सर interpretation होगा. That will be a second order. I'm just looking for the simple things so that you will get a clarity about the idea, clarity about the concept. Is it clear? चलो इसको solve करते हैं. Have you solved this exercise? आपने ये solve किया है क्या बताइए? नहीं किया तो जरा attempt करिए. Just have a look on this. बोलो क्या देखोगे पहले? Which signal you look for first? कौन सा सिग्नल देखोगे बोलो? मिथिल सिग्नल. मिथिल. तो क्या दिख रहा है? मिथिल दिख रहा है ना. हाँ चलो कार्बोनिल भी देखते हैं. पहले सिंपल क्या दिख रहा है देखते हैं. सिंगलेट वाला देखते हैं. सिंगलेट वाला टर्मिनल वाला देखेंगे. सर ट्रान्सपन पहिले बघता येईल ना तिथे. हा सर ट्रान्सपन बघता येईल पण ते कॉम्प्लेक्स आहे ना. सिंपल काय दिसू शकेल? मिथिल सिग्नल. Nerkar sir, what you are saying is right. What you are saying is right, but generally strategy should be, my strategy is always start from the terminal. Yes, sir. So that Yes, you sir. approach inside, so that it becomes easy. Yes, sir. Okay? Yes, sir. So it is a 6 proton and this is 6 proton. So there are which protons will be corresponding to 6? Okay, वो identical कहाँ पे होंगे? This proton and this proton is 1, and these two protons are different. है ना? So can I write this is A, these are B. 6 proton के है क्या? ये दोनों. इसमें से सबसे downfield which will be downfield 3.82. So this will be HB and this will be HA. चलो ये तो दोनों खत्म हो गए. Yes, sir. अभी इजी क्या है? अभी इजी क्या है बताइए? अभी आपको दिखेगा. Now we'll see. There is a other part. Aromatic signal कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना? So can I write here? मैं इसको P और Q लिख देता हूँ so that it becomes easy for me to write ABC. ठीक है ना? इसे मैं HA लिख देता हूँ. मैं इसे HB लिख देता हूँ. I'll write it as HC. I'll writing HD. What should I write here? Should I write E or I should write something different? बोलो. यहाँ पे क्या लिखो? E लिखो या क्या लिखो? HC. It has to be C because it's a symmetrical one. Is it clear? So this is C. तो आप देखो कि यहाँ पे कितने सिग्नल दिख रहे हैं एरोमेटिक के? 1, 2, 3 और 4 दिख रहे हैं क्या? Can you see the 4 signals? एक राहिला सर. H आहे जवळचा. Okay, 1, 2. Okay, आदमी पे दिखेगा. ये 3 दिखेगा. ये 4 दिखेगा और ये 5. Yes, this will be a 5. Is it okay? तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन ये कैसे काउंट किया आपने? ठीक है, मैंने नहीं काउंट किया तो इसको रख दो इसको ऐसे. अभी तो इतना ही दिख रहा है. तो आप पूछोगे सर ये दोनों आपने क्यों ओमिट कर दिए? Because as the Nerkar sir has told correctly, this is a very specific J value. This value is very specific, and which is corresponding to
cross coupling, this one. Is it okay? So ultimately I can go with, I can show that this is a HX and this is a HY. अभी आप देखो, अभी क्या क्या होगा जरा देखो, बताइए मुझे कौन सा डाउनफील्ड होगा और कौन सा अपफील्ड होगा, कोई बताएगा क्या मुझे? Can anybody tell me whether HX will be upfield or HY will be upfield and why? बोलो, अपफील्ड और डाउनफील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आनी चाहिए। कहां से सोर्स है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने का? जहां पे लोन पेयर पड़े हुए हैं। ये एक लोन पेयर है, ये भी एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है ना? इज इट ओके? आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन होगा तो आप ये भी डायरेक्टली बता सकते हो क्या? देखो, आप देखो यहाँ पे, नाउ यू जस्ट लुक ओवर हियर, आप क्या देखोगे? ये देखो, यहां से यहां आ गया, देन दिस विल कम्स ओवर हियर, देन दिस विल कम ओवर हियर एंड दिस विल शिफ्ट ओवर हियर। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली आपको दिखेगा यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे डेल्टा प्लस है। यहाँ पे भी डेल्टा माइनस नहीं हो सकता, ये डेल्टा माइनस होगा। अभी आप यहां से देखो तो इस ग्रुप के विथ रिस्पेक्ट टू ये मेटा पोजीशन पे, तो इसका किसी भी हालत में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ सकता। देखो आप करके, आपको देखना है तो देखो करके, ये देखो यहाँ पे जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इज इट क्लियर? तो इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस, दिस विल बी ओनली इफेक्ट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया शील्डेड और ये हो गया डी शील्डेड। बताइए इसमें से कौन सा कौन होगा फिर? बोलो, which one is which one is which? This will be HX and this will be HY. ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पहले। Is it okay? येस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? अभी आप देखो, नाउ जस्ट हैव अ लुक। जैसे मेरे को सर ने पहले बोला था कि यहाँ पे वो ट्रांस वाला देखना है, वैसे वो सिस वाला भी देखो। ये देखो, एरोमेटिक में कभी भी आपका जो डेल्टा जे वैल्यू है वो 8 से 9 तक जाएगा, 10 कभी नहीं दिखेगा। एरोमेटिक का जो जे वैल्यू है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 to 9, 10 तक नहीं जाएगा। सो 10 विल बी डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग टू दिस टू सिग्नल्स। इज इट ओके? बोलो। एकदम भारी है। इज इट क्लियर? तो मैं इसको लिखूं, क्या लिखूं मैं? इसको M और N लिख दो। तो बोलो अभी ये क्या हो गया? दिस एंड दिस विल बी, कौन सा डाउनफील्ड होगा और कौन सा अपफील्ड होगा? बोलो। तो आपको वही करना है सिचुएशन वापिस। इसके बजाय ये यहाँ पे डालो और ये यहां से यहां डालो। ये समझ में आ गया? ओके, तो दोनों हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये HM होगा या HN होगा, ये दोनों के लिए सिग्नल होगा। कौन सा क्या होगा ये आपको थोड़ा समझ के काम करना पड़ेगा, देन इट विल बी पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी बताइए कौन सा सिग्नल आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो? जो बचे हुए सिग्नल है इसमें कौन सा कंक्लूड कर सकते हो? बताइए। अभी आप ये सिग्नल ले लीजिए HD वाला, तो क्या होगा वो? दिस विल एक्सक्लूसिवली कपल विद दिस विथ जे वैल्यू 2, जे वैल्यू 2 मेटा कपलिंग है, इसलिए आपको दिखेगा ये जो दो है सिग्नल मेटा कपलिंग वाले, है ना? ये दो मेटा कपलिंग वाले सिग्नल है आपके पास। इसमें से कौन सा सिग्नल? ये देखो मेटा कपलिंग वाले दो ही सिग्नल है और ये एक सिग्नल है, ये देखो ये वाला एक, है ना? तो इसमें से ये वाले जो सिग्नल है इसके बारे में छोड़ देते हैं। अभी बताइए इसमें से ये सिग्नल कौन सा होगा? बोलो। सांगा कुठलं काय येईल? हॅलो, हॅलो, आवाज येतो? येस सर. बोला ना आता. इथपर्यंत सगळ्यांना काही डाऊट आहे का? कोणाला काही डाऊट आहे का सांगा. नाही काय प्रॉब्लेम सर, रेझोनन्स मुळे होतंय ते, बरोबर आहे. आता इथं तुम्ही हे करू शकता, हे दोघांमध्ये पण करू शकता. यू कैन हैव वन लॉजिक इज ये यहाँ से यहाँ अंदर भी जा सकता है ना, ऐसा दिस कैन बी पॉसिबल। हाँ, तो वो दिखा सकते हो, बट यू कैनॉट रियली कंक्लूड विच वन HM और HN।
ये नहीं बता सकते उसको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनओई करना पड़ेगा. ओके, लॉजिक लिख सकते हो कोई तो कोई मतलब नाही, पर नाही लिख सकते. इज इट ओके? हे समजलं का सगळ्यांना? हे जर समजलं असेल तर मला एक मिनिट द्या, मी या स्ट्रक्चरची फक्त इमेजची कॉपी करतो आणि खाली आणतो, म्हणजे मला तुम्हाला दाखवता येईल ऍक्च्युअली. अभी बताओ मुझे इसमें से कौन कौन सा सिग्नल गया अपना, विच वी हैव हाईलाइटेड. ये देखो, ये तो खत्म हो गया आपका, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी खत्म हो गया. ओके, इसके बारे में भी कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया. इज इट ओके? तो इतने बचे हुए सिग्नल मुझे लिखने हैं. बताइए मुझे अभी कौन से सिग्नल कहाँ पे लिखूंगा, आपका लॉजिक मुझे सुनना है. आई वांट टू लिसन योर लॉजिक. बोलो आपका लॉजिक बताइए मुझे. एवरीबडी प्लीज पार्टिसिपेट नाउ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज टेल मी योर लॉजिक नाउ. कौन सा सिग्नल पहले पकड़ोगे आप? कौन सा सिग्नल? एच सी जो सिग्नल आहे ना तो 2 प्रोटॉनसाठी, मग 2 प्रोटॉनचे जे सिग्नल आहे ते आपण घेऊ शकतो, तो एकच आहे 6.63. Very good, sir. Very good. Very good. So it will be HC. Very good, sir. So that is what is very important. आपको कौन सा सिग्नल देखना है और कहां से देखना है. That logic is very very important. Is it okay for everybody? How the sir has approached the problem? I hope everybody got the idea. Is it okay? हाँ, HC हो गया. चलो HC हो गया. अभी आगे चलो. Let's go for the next one. Which signal now you look for? अभी देखो ये HC हो गया. इसका मतलब ये किसके साथ कपल कर रहा है? सर XC XC के HD के साथ. तो HD क्या दिखेगा बताओ मुझे. HD क्या दिखेगा? 6.37. HD will be ये इसके साथ भी और इसके साथ, ये इसके साथ 2 के साथ रहा है. ट्रिपलेट दिखेगा सर, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट नहीं दिखेगा सर. हेलो, सॉरी, ट्रिपलेट करेक्ट. is it okay? So it will be a triplet. So which is a triplet with to this one? So you will conclude with this one. तो ये आपने फर्स्ट कंसीडर किया, बाद में आपने इसको कंसीडर किया. Is it okay? ओके ओके. समजलं का? एव्हरीबडी गॉट द पॉइंट? कल्याणी मॅडम, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट लुक फॉर द अप्रोच. हा, अरे तुम्ही आता बऱ्याच दिवसानंतर करताय त्यामुळे जस्ट ओके. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नाउ रिमेनिंग इज दिस वन. नाउ सी, out of this if you compare now this one, which is the easiest one? This will be appeared as doublet. This will be appeared as doublet. This will be appeared as this will couple with this and this will meta be. ये doublet of doublet होगा, है क्या नहीं? Is it okay? Yes sir. Out of which is the easiest one? Doublet of doublet. तो ये क्या होगा? HP होगा. इसको 3 लिख दो. अभी HD क्या होगा? इसके साथ करेगा, एक के साथ 2 और एक के साथ 7. तो 7 वाला कौन सा है? ये वाला. तो 7 वाला अर्थ होगा Again 7. Again having same J value. यस. ओके, तो ये कौन सा होगा आपका? HA होगा. तो आप इसको 4th में कंक्लूड करोगे और इसको आप 5 में कंक्लूड करोगे, जो आपने लिखा है HB. Is it okay now everybody? How I approach? कैसे समझ में लेना है? समझ में आ गया? How the नांदुरकर सर has approached the problem? I hope everybody clear the things. नेरकर सर ने एक स्ट्रेटेजी बताया था, मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया. क्या मॉडिफाई किया? इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर द J वैल्यू फर्स्ट, यू फर्स्ट स्टार्ट विद द टर्मिनल से चालू करो, तो इजी निकल जाएगा. बाद में आप क्या देखो, एरोमेटिक का डबल बॉन्ड से कंक्लूड करो. कैसे कंक्लूड किया आपने? एरोमेटिक वैल्यू इज ऑलवेज फ्रॉम 2 to 9. 9 से बड़ा वाला होगा, वो क्या हो सकता है? ये डबल बॉन्ड वाला. ये देखो,
इसमें से एक सी से एक ट्रांस है, तो एक छोटा वाला और बड़ा वाला. That's how you have to approach the problem. Is it okay? Can you able to do? तो मैंने ऑलरेडी बोला है, मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है आपको कि ए एम और एन वाला सिग्नल जो है यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश क्लियरली, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा. लॉजिक तो देके कुछ भी लिख सकते हैं, और वो कुछ मतलब नहीं, उसका कुछ मतलब नहीं है. यू कैन नॉट डू द थिंग्स करेक्टली. ठीक है? Is it satisfactory? It's making Yes, sense. sir. Is it making sense ना? Okay. येस येस. चलो अभी ये करो अभी, चलो इसके बाद और एक है और then we'll stop. चलो करो फटाफट मैडम. So this is how I hope now you have got the sufficient practice. If you want, I can send the another PPT with contain more than say more 20-30 problems of similar type. Okay. Structure elucidation वाले आप कर लो तो आपको problem नहीं आएगा. So that will be we can say the worksheet for you. उसमें से ही कुछ तो हम एग्जाम में पूछ लेंगे, but you solve this thing. Okay? ठीक है? Is it okay? Okay, sir. सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिमिलर टाइप में उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन बना के करेंगे कुछ ना कुछ. चलो बोलो अभी इसमें क्या है, इजी क्या है नेरकर सर, आता काय इजी असेल सांगा. हा सर, सिंगलेट वाले. सिंगलेट काढून घ्यावं लागतील सर आधी. ए और बी, अभी इसमें से कौन सा ए और कौन सा बी होगा बताइए. अभी ये दोनों भी आई एम सॉरी, इथं चूक झाली माझी. देयर इज वन प्रॉब्लेम फ्रॉम माय साइड. आई एम सॉरी. दिस इज माय फॉल्ट. प्रॉब्लेम. अरे यार, एक मिनिट. स्टाइलस मुळे प्रॉब्लेम. ए बाबा, कैसे गड़बड़ है ये. ओके, बोलो अभी ए कौन सा होगा और बी कौन सा होगा. जस्ट प्लीज जस्ट अप्लाई द लॉजिक. क्या होगा बताइए, ए कौन सा होगा, बी तर कौन सा जो होगा. पिरियडियन रिंगचा आहे ना, तो जास्त डिशिल्डेड असेल. 4.40 A. ए का ए Due to pyridine nitrogen. pyridine nitrogen, very good. So that will be because of pyridine nitrogen, है कि नहीं? Because of pyridine nitrogen, very good. इसमें क्या होगा? What is the possibility we can draw it? We can show it like this one. And ultimately it will be delta plus, है ना? तो ए कौन सा होगा बताइए. ए विल बी, सर असं का होईल पण नायट्रोजन तर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे ना ऑक्सिजन पेक्षा का पिरिडिन, त्याच्याकडे पण लोन पेअर आहे. मॅडम प्लस आर इफेक्ट आहे मिथॉक्सिग्रिडचा. मॅडम तो बरोबर आहे, पण हा नायट्रोजन जो आहे ना मॅडम, हा नायट्रोजन हा आणि हा ऑक्सिजन, तुम्ही जरा आता दोन्ही कम्पेअर करा. इट हॅज अ मायनस आय, ब्लड इज प्लस, इट हॅज प्लस आर. एक नंबर एक, दिस ऑक्सिजन, दिस व्हॉट इज द हायब्रिडेशन ऑफ दिस ऑक्सिजन, टेल मी व्हॉट इज द हायब्रिडेशन ऑफ दिस ऑक्सिजन. sp3 ना, नाही मॅडम, दोन लोन पेअर आहेत. तेच सांगतो जरा वॉटर बघा, ऐका जरा. सारखं. नाही 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 नाही, जरा एक मिनिट ऐका. हायब्रिडायझेशन हे जरा मिस थोडस बऱ्याच वेळेला आपण हे वेगळ्या पद्धतीने करतो, ते सांगतो मी जरा ऐका. हायब्रिडायझेशन वी जनरली लॉक फ्रॉम द स्ट्रक्चर. From the structure, we write a hybridization. Okay, what is the structure? Number of sigma bonds plus number of lone pair लिहितो आपण. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेअर मी लोन पेअर लिहितो. But remember that for this there is always an exception. There is an exception for this rule. It is not always true. What is the rule? Is that atom with a lone pair or a negative charge attached to
attached to sp2 hybridized atom, then that atom should be always sp2 hybridized. This is by exception, means इसका लोन पेयर, इसका मुझे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो दिख तो रहा है sp3, ये दिख रहा है मैडम जैसे बोल रहे हो वैसे कि sp3 दिख रहा है, पर वो है नहीं sp3. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है एंड दिस इज अटैच्ड टू sp2, इसलिए ये दिख तो रहा है sp3 पर है sp2. एंड दैट्स व्हाई यू नो दैट आप जब रेजोनेंस निकालोगे, जब आप रेजोनेंस निकालोगे ना, सी केयरफुली लिसन, आप जब रेजोनेंस निकालोगे किसी मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस निकालोगे, तो मैं इधर निकालता हूं आपको, आपके लिए ये दिखा रहा हूं मैं, देखो जरा, जस्ट सी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको ऐसे निकालता हूं, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक मिथिल है ना. अभी क्या होगा देखो, these are p orbitals of benzene, है ना, these are the p orbitals of benzene. अभी यहाँ पे p ऑर्बिटल है ना, इसमें से एक जो है ये होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में. This lone pair will be in hybrid, but remember that other p is in the other lone pair will be in the p orbital. और ये p ऑर्बिटल में होते हुए आपको पता लगेगा, इसलिए ये लोन पेयर यहां पे आता है और ये लोन पेयर यहां पे आता है और ये लोन पेयर यहां से यहां आ जाता है. हाइब्रिड वाले कभी भी, रिमेंबर दैट the lone pairs which are in the hybrid orbital never participate in the resonance, never. इसलिए ऑक्सीजन का एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है. इफ somebody ask you, आपको कॉलेजेस में शायद ऐसा अलग बताया होगा कि उसमें से एक ही जाता है, पर उसका रीजन ये है. अभी आप फ्लोरीन ले लो, now you take a फ्लोरीन, अब फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन में क्या होगा बताइए, इसका हाइब्रिडेशन जो दिख रहा है वो है sp3, पर वो sp3 है ही नहीं है, दिख तो रहा है sp3 पर है नहीं sp3, इट इज एन sp2 बिकॉज ऑफ एक्सेप्शन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये sp3 है तो इसमें क्या होना चाहिए, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो ये सिग्मा तो काउंट हो गया, तो एक सिग्मा हो गया, और कितने लोन पेयर चाहिए, 2 लोन पेयर. इसका मतलब ये एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर विल बी अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये समझ में आ गया. और ये जो है दिस विल बी योर प्योर पी, और प्योर पी वाला ही रेजोनेंस में जाएगा, इसलिए इसका रेजोनेंस हम ऐसे ही दिखाते, दूसरा क्यों नहीं दिखाते. द रीजन इज बेस्ड ऑन दिस वन. हाइब्रिड वाले कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द हाइब्रिडेशन, मिक्सचर में गए ओके वो फ्री नहीं है. ओके आई गॉट इट. नेरकर सर. Yes, sir. म्हणून ते आपण त्या सिलेबस मध्ये म्हणत होतो ना, हायब्रिडायझेशन आणि ते हे घाला, ते त्यासाठी होतं. ठीक आहे. Yes, sir. Yes, sir. You're right. Okay, so this is very important. I hope this point is clear. Whenever you calculate by this formula, remember that you have to look for that atom if carries a negative charge or lone pair. अभी आप ये भी देखो, अभी आप ये भी देखो, ये देखो इधर माइनस, इसमें क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, तो ये को हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड, इसलिए एक ही लॉक करते. पर ये डेफिनेशन को भी एक्सेप्शन है. देखो केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, इसमें भी एक्सेप्शन. मैंने क्या बोला था अभी, मैंने क्या बोला था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ध्यान में रखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना. एंड माने मैडम, यस माने मैडम, हाँ यस आई एम लिसनिंग. हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता, बट प्योर ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड. मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको, पर इसको भी एक एक्सेप्शन है मैडम, पता है क्या आपको, नेरकर सर. डेल्टा बॉन्ड नहीं, डेल्टा बॉन्ड वेगळा मैडम, पाई बॉन्ड मैडम, पाई बॉन्ड इज टू लोब इंटरेक्शन इंटरेक्शन वाला है मैडम ये. डेल्टा बॉन्ड जो है दैट इज द 4 लोब इंटरेक्शन वाला है. यस डी ऑर्बिटल पार्टिकल इन दैट. हाँ ओके. एक्सेप्शन क्या है नांदुरकर सर, काही माहिती आहे का एक्सेप्शन काय आहे याचं. नाही सर, आता नाही लक्षात येत माझ्या. अभिजित, नाही सर, नाही लक्षात येते.
किसी को पता है क्या? देयर इज वन एक्सेप्शन, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बाय sp3d3 IF7. नाही नाही डीचं काय सवाल नाही मॅडम. पाय बॉन्ड चाललं तर डी कुठे येणार मॅडम तिथं? ओके ओके ओके. पाय बॉन्ड बनवतात डी. हा DXY आहे ना ते सिग्मा बॉन्ड बनवतं ना, सो आय मैडम दिस इज एग्जांपल ऑफ बेंजाइन. ओके. ये बेंजाइन में क्या है मैडम? हाँ हाँ बेंजाइन में क्या है देखो. In this benzene molecule we know that there is a benzene, they have the two lone pair. तो ये जो ऑर्बिटल है ये और ये एक्चुअल में these are actually sp2 और ये पाई बॉन्ड बनाते. हाँ यस यस यू आर राइट सर. ओके. So this is exception. Okay. हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम. ओके जस्ट गिव मी 1 मिनिट. जस्ट गिव मी 1 मिनिट टाइम. प्लीज गिव मी 1 मिनिट टाइम. लेट मी स्टॉप द थिंग्स. आई जस्ट आपण आता हे करतोय डिस्कशन तर हे करूयात. मला फक्त एक तुम्हाला दाखवायचं मॅडम. तुम्ही आता काढलं विषय म्हणून मी दाखवते फक्त. जस्ट 1 मिनिट. जस्ट 1 मिनिट. कल्याणी मॅडम हा मी हे तुम्हाला दाखवतोय मुद्दा म्हणून. तुम्ही आता काहीतरी म्हणालात ना तर ते मी फक्त तुम्हाला क्लेरिफाय नाही पण तुम्हाला थोडं जरा क्लिअर यावं म्हणून मी सांगतोय. हे थोडं ऍक्च्युली आपण गेल्या वेळेला आपण डिस्कस केलं होतं आपलं वर्ग ह्याच्यामध्ये. पण जरा बघा हे बघा. नाउ सी केअरफुली. सी दिस इज द ऑर्बिटल्स राईट. yes yes ऑर्बिटल नाउ these are the orbitals. Okay, now what happened? The number of closed loop in the orbital are called as lobe. Number of closed loop. So in S, how many lobes are there? 1 lobe. In P orbital, there are 2 lobes. Two. In a D orbital, there are 4 lobes. yes Now remember that. All the D orbitals are not same. Fundamentally, all the D orbitals are not same. yes yes Okay. that There is a one is in between the axis, and some are along the axis. yes So dx, dx, dy, dz, they are in between the axis. They have the 4 lobe. yes right. Similarly, dx square minus y square, it has a 4 lobe. Yes, along the axis. But dz square has a 8 lobe. 8. 8 lobe. Okay. dz is not a normal situation, madam. But it's looking just there is a 2 3. हा वाटतं तुम्हाला ते वाटतंय पण ऍक्च्युअली सिच्युएशन अशी आहे मॅडम. ही बघा हे बघा ही अशी सिच्युएशन आहे. हे बघा अशी. दिस dx square y square and dyz square वो x zz वाला बड़ा हो गया और ये जो है x and y which are in the plane they form a circular disc. ये देखो ये मैडम देखो ये वाला हे बघा हे दिसतंय का तुम्हाला? हा हे बघा हे बघा हे अख्खाच्या अख्खा असं सर्क्युलर बनतं. Sir, while studying spectroscopy, we all should know this orbitals also. मैडम पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि which orbitals actually involved in the resonance or not and why whether we the electron density over there or not. Okay, sir. Okay, sir. For example, if you take the electron density from fluorine and chlorine, so which proton will be upfield or downfield? Fluorine. Fluorine. Why? Because that lone pair is in the P, but in Yes, chlorine sir. it is in D. तो वो पता होना चाहिए मैडम. बॉन्डिंग तो पता ही होना चाहिए. Yes, बॉन्डिंग sir. is a hard part of the this one. ये Yes, अभी sir. मैडम ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ ये dz square कैसे आया. तो ये important part है. It involved 8 loops basically. Now can I proceed further? Okay. Yes, sir. Yes. हाँ now देखो हम जब किसी को भी बताते हैं कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं. So bonds are actually formed the head-on collision or side-by collision. सिग्मा बॉन्ड मीन्स हेड ऑन कोलिजन. तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? तो हम बताते हैं हेड ऑन भी कुछ नहीं होता. हेड ऑन मीन्स इज अ वन लोब इंटरेक्शन. जब एक लोब दूसरे लोब के साथ इंटरेक्ट करेगा तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो क्या होगा? एस के साथ एस, ये देखो एस के साथ एस एक लोब, एस के साथ पी एक लोब, पी के साथ पी एक लोब. वैसे भी आप डी के साथ डी कर सकते हो. कौन सा डी? ये देखो ये और ये एक बात समझ में आ गया. तो एक ही लोब बनेगा ना, ये वाला और ये वाला. ये देखो मैडम
ये वाला और ये वाला कंबाइन हो गया तो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। वो डी डी वाला लिखा मैंने, ये देखो ये डी डी वाला, पर ये डी कौन सा दिखेगा? सिर्फ डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला ही दिखेगा। ये वाले जो है ना मैडम, ये वाले ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बताते। आणि म्हणून हाँ, और आप ये भी देखो, आपको पता होगा, आप जब ये ऐसा बॉन्ड दिखाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आप डी जेड स्क्वायर दिखाते हो, बाद में आप क्या दिखाते हो? बाद में आप दिखाते हो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाद में ये दिखाते हो। क्यों? द रीजन हिडन यूर ईयर, इसलिए बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। नॉट अ आयोनिक बॉन्डिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल अकॉर्डिंग टू मी। दिस बॉन्डिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ वन लोब इंटरेक्शन। अभी क्या होगा कि जब पाई बॉन्ड छोड़ो, जब साइडवाइज होगा तो वहां पे क्या होगा? दो लोब इंटरेक्ट होंगे। कैसे होंगे वो देखो, ये दिखा रहा हूं मैं, देखो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। यस यस, इज इट ओके? नाउ गिव मी 1 मिनट टाइम मोर। ओके, जस्ट गिव, ये हमारा डिस्कशन होता रहेगा, पर ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, आई विल शो यू वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम। खूपच हेवी झालंय ना, जस्ट 1 मिनिट हा। तर माझी या फाईल्स खूप हेवी आहेत, त्याच्यामुळे त्यात खूप लिहिलं गेलंय, त्यामुळे ते ओपन व्हायला थोडा 1-2 मिनिटं लागतो, पण आम्ही शेवटचं घेतो ना एक्झाम्पल, आपण नंतर बघूयात। आय जस्ट वॉन्ट टू शो यू वन इम्पॉर्टंट पॉइंट। हे बघा मॅडम, करणारे बाबा राहणलास। हा हा, हे बघा मॅडम, हे दिसतंय का? हे बघा, हे पाय बॉन्ड झालं, बिकॉज देर आर टू लोब इंटरेक्शन. नाउ दिस इज द डी पाय पी पाय, बिकॉज देर आर टू लोब इंटरेक्शन. बट डी एक्स स्क्वेयर, हाँ क्या होता है ऐसा, बट डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर पी वाई के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, बट डी जेड स्क्वेयर पी जेड के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है। इज इट ओके? यस यस यस। हाँ, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको। अरे यार खूपच गंडले बा, काय झालंय, फाईल खूप हेवी झाल्यात माझ्या, 70-80 आहेत आणि सगळ्या अशा लिहिलेल्या आहेत, त्यामुळे ते थोड्या, एकच मिनिटात तुम्हाला हे दाखवतो की ते झेड स्क्वेअर जे तुम्ही म्हणताय ना, 5 ऑर्बिटल, ते मी तुम्हाला फक्त दाखवायचा प्रयत्न करतोय। बघा इथे मॅडम आहे, नाउ दिस इज अ 4 लूप. This is 4 loop, and that can be possible only dx square minus y square and dx square minus y square. दोन्ही सेमच पाहिजे, बरोबर. Okay, so that's why the point what I'm trying to highlight in front of you is this one. अरे कौन है आता? हाँ, अरे यार ऊपर खाली का, हाँ दिस, ये देखो मैडम, तो वो 4 लूप की वजह से डी बनेगा और 6 लूप की वजह से 5 बनेगा। ओके, इज इट ओके? हाँ, सो दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट, आणि हे मी त्यावेळेला पण सांगत होतो की आपल्या सिलेबस मध्ये हे असायला पाहिजे. आपण ते सॉलिड बॉन्ड आणि हे शिकवण्यात काही अर्थ नाही त्याला, ठीक आहे, तो आपल्या डिस्कशनचा भाग नाही, पण सांगण्याचा फक्त आता विषय निघाला म्हणून सांगतोय की दिस इज अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. Okay, if you want I can write this is separately on the sheet and I'll put it to you, otherwise I'll delete this point. यस, नक्की शेअर करा.
Okay, so just go with this one. Okay, can you solve this exercise at home? Can you solve this exercise at home? Yes, sir. This one and this one. Yes, sir, no problem. And next lecture we'll actually go with the spectra and try to interpret each and every spectra. Okay, तो आपको दिखेगा कि वो कैसे निकालते, जे वैल्यू कैसे निकालते. So preliminary information आपके पास आ जाएगी. Preliminary information आपके पास आ जाएगी. And that preliminary information will be helpful when the Bhaskar sir will going to discuss about the other instrumental part. Means actual spectra कैसे दिखा, आपके कंपाउंड का स्पेक्ट्रा कैसे दिखा. तो मैं प्राइमरी स्टेज में बता रहा हूँ. मीन्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ 1 degree spectrum. Complex